स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग? ठीक, थैंक यू। अच्छा, आप जितने भी स्टूडेंट इस वक्त बैठे हुए हैं, आप अपने जो दोस्तों को मैसेज कर दें जिन्होंने सुबह का लेक्चर नहीं लिया, वो आ जाएं अगर वो फ्री हैं। ये सेक्शन बी की मेरा ख्याल है क्लास हो रही है। सेक्शन ए सुबह अपनी क्लास कंडक्ट कर चुका है। जो सुबह मैंने पढ़ाया है वही दोबारा रिपीट करना है क्योंकि दूसरा सेक्शन है। अच्छा, this is the last lecture for Gaussian elimination. So far, आप सारे मेरे साथ हैं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश। So far, what we have covered is how to solve a 2 by 2 system of equations. आप लोग प्लीज अपनी नोटबुक्स, कॉपीज, पेंसिल्स अपने सामने रखिए ताकि अभी मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगा तो वो आप सॉल्व करेंगे। We know how to solve a 2 by 2 system. We know that if it is 3x plus 7y is equal to 8 and 6x minus 10y is equal to 11, so we know how to solve it. इसे सॉल्व करने का जो तरीका है वो हमें 2 by 2 गॉसियन से ही पता लगता है कि मैंने ये जो कॉफिशेंट्स हैं, इन कॉफिशेंट्स को मैंने आइडेंटिटी की तरफ लेकर जाना है and the solution exists in the identity. Identity is equal to some value. So this column C, the constants column represents the solution. This is the column for X and this is the column for Y. So far हमने जो सोल्यूशन किया है, एक किया है गॉसियन एलिमिनेशन से, एक किया है हमने एलिमिनेशन से और एक हमने कर दिया है यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं सारे? We also know that if we expand such system, to more number of variables, let's say it is n by n system, where we have x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to 4 and x1 plus 3x2 plus 7x3 plus 11x4 is equal to 9 and 3x1 plus 5x2 plus 24x3 plus 19x4 is equal to 17 and any other value like 12x1 plus 13x2 plus whatever 7x3 plus x4 is equal to 10. In this scenario, it is a 4 by 4 system. We know this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3, this is equation 4. ठीक है, यहां तक मेरे साथ हैं आप लोग बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यस सर। वेरी गुड। हमें ये पता था कि जो 2 by 2 सिस्टम है उस 2 by 2 सिस्टम को भी मैंने आइडेंटिटी की तरफ लेकर जाना है, तो n by n सिस्टम को भी मैं आइडेंटिटी की तरफ लेकर जाऊंगा। तो ये जो सिस्टम है इसकी आइडेंटिटी इसके कोफिशिएंट्स से बनेगी। तो दिस मस्ट बी 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0, 0, 0, 1 and the solution we have. अप्लाई इस पे भी आपने रो ऑपरेशन ही करने हैं, क्योंकि मैं सिर्फ ये मेथड आपको करा रहा हूँ अभी. वी आर नॉट गोइंग फॉर एलिमिनेशन एंड graphical method, so we must apply some row operation. आपकी जी बेटे, सर स्क्रीन लैग हो रही है आपकी. आवाज लैग हो रही है मेरी या वीडियो? वीडियो. अच्छा, वो अभी थोड़ा सा लैग होता है उसमें, फिर वो चल पड़ेगी. So this is that we should apply some row operations to reach out for this solution. Ultimate हमारा solution ये है, identity, to create the identity, और उसके opposite जो भी हमारे elements बनेंगे. How difficult it is to solve such an system. ये मैं अब इसमें एक्चुअल वैल्यूज प्लग इन कर देता हूँ एंड लेट्स डू दिस स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पता लगे कि ये सॉल्व कैसे होना है. Okay, please keep your books with you, sorry, keep your copies with you so that you may solve it right away. 20x1 plus 30x2 plus 8x3 plus 6x4 is equal to 6,000. Equation 1. 150 x1 plus 100 x2 plus 60 x3 plus 70 x4 is equal to 40,000. Then it is 1000 x1 plus 300 x2 plus 400 x3 plus 200 x4 is equal to 150,000. This is equation number 3. And of course we have x4 is equal to 2x1 plus x3 as our equation number 4. Sorry, this is equation number 4, x1 plus x2. Please apply the row operations and start solving it to achieve the identity. You all can see the board. सर वीडियो बिल्कुल स्टक हुई है बहुत देर से. वीडियो बिल्कुल नहीं चल रही. सर भी बहुत ज्यादा लैग है. अच्छा, आर यू श्योर कि ये लैग आपकी तरफ से नहीं है? जी सर, मेरे यहाँ से सबको ये इशू हो रहा है. सर लैग आ रहा है. अच्छा, अभी ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया? यस सर.
Okay, now जी start सर solving. अभी आया। Well done. Start solving the question. Remember, our solution is identity, 4 by 4 identity. What is the first step that you are doing? पहला step. पहला स्टेप क्या करने लगे आप लोग? Should I do it for you or let you work first? मेरा ख्याल है पहले आप लोग करें। सर पहले आप करें। मैं तो कर ही लूंगा, सही कह रहे हो, लेकिन आप ट्राई करें। अदरवाइज फिर आप रहते रहते रह जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो अपनी आसानी के लिए, आपके लिए भी बता रहा हूँ कि आसानी के लिए जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो मैं इक्वेशंस को रीअरेंज कर सकता हूँ, इतनी लिबर्टी मुझे है। तो आप लोग जैसे भी कर रहे हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें मुझे कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 में मुझे कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा, उसे मैं रीअरेंज कर सकता हूँ। मैं इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 की जगह लिख सकता हूँ और बाकी सबको एज इट इज़, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी, ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। तो दैट मीन्स अगर मैं इसे अपनी आसानी के लिए लिखूँ तो ये इक्वेशन कुछ यहाँ पे ऐसे बनेगी, -2 0 1 0 20 30 8 6 6000 150 100 60 70 40,000। सर ये -2 क्यों आ गया? बताता हूँ जी, आप बताएंगे माइनस में क्यों आया होगा। आपको क्या लॉजिक समझ आता है इसका? पता नहीं सर। ये इसकी बात कर रहे हैं आप? सर ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखी है जी जी, इधर देखिए बोर्ड पे, x4 = 2x1 + x2 है ना। सर तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लैग हो रही है सर, तो
जी स्टूडेंट्स, ये माइक की सॉरी बैटरी लो हो गई थी। अच्छा, तो ये बात कर रहे थे कि ये -2 और -2 कहाँ से आ गया टॉप पे? यस सर। जी, ये देख रहे हैं x4 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2। यस सर। अच्छा, इसी को रीअरेंज कर लिया मैंने। x1 और x2 को मैं इस साइड पे ले आया, कॉन्स्टेंट्स को मैंने जीरो कर दिया, तो आई हैव 2x1 नेगेटिव माइनस 2x2 नेगेटिव प्लस x4 इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है सर। ठीक हो गया। और फिर इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन वन बना लिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिंपलर कोएफिशिएंट्स नज़र आ रहे हैं मुझे, तो इसे मैंने इक्वेशन 1 बना लिया अपने लिए। दैट मीन्स नाउ दिस इज माय रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। ठीक हो गया बच्चे? यस सर। अच्छा, अब आगे आप अपना काम शुरू कर दें। आपका काम ये है कि आपने रो ऑपरेशंस अप्लाई करने। तो फर्स्ट रो ऑपरेशन जो मुझे नज़र आ रहा है फॉर R1, ये इस वक्त मैं रो ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, जिसे मैं स्टेप 1 बोल दूंगा। दैट इज R1A इज इक्वल टू -1/2 into R1, so that it becomes 1, 1, 1, 0, -1/2, 0. So after step number 1, it is 1, 1, 0, 1, 0, -1/2. It becomes 20, 30, 8, 6, 6000। पूरी की पूरी रो -1/2 से मल्टीप्लाई हो गई है R1 की। 150, 100, 60, 70, 40,000, 1,000, 300, 400, 200, 150,000. This was step number 2. What about step number 2? That was step number 1, sorry. What about step number 2? Excuse me. For step number 2, I need to create R2A now. By the way, this is R1A now. यहाँ लिख देता हूँ. This is R1A. This is still R2, R3, R4. 4 रोज क्रिएट हो गई। R2A क्रिएट करनी है, R3A भी क्रिएट करेंगे, R4A भी क्रिएट करेंगे। इसका मतलब है आप 20, 150 और 1000 की जगह आपने 0 लेकर आना है, क्योंकि आइडेंटिटी में कॉलम 1 में सिर्फ टॉप एलिमेंट 1 होता है, बाकी सारे के सारे 0 होते हैं। तो R2 के लिए जो ऑपरेशन नजर आएगा वो ये है, -20 R1A प्लस R2। R3A के लिए जो ऑपरेशन नजर आएगा वो होगा -150 R1A प्लस R3। R4A के लिए जो ऑपरेशन नजर आएगा वो होगा -1000 R1A प्लस R3, R4, सॉरी। So this becomes -20 प्लस 20, 0। टॉप रो तो उसकी सेम ही रहेगी, दैट इज 1, 1, 0, -1/2 एंड 0।
So this becomes minus 20 plus 20, 0. Minus 20 plus 30, 10. 0 plus 8, 8. This becomes 20 by 2, 10 plus 6, 16. 0 plus 60,000 is 60,000. अगर कोई फिगर्स में गलती हो तो मुझे आप रोक दीजिएगा प्लीज. दिस इज R1A, दिस इज R2A. We are सर going. आपने स्टेप नंबर 2 में नेगेटिव साइन क्यों दिया हुआ है सर? स्टेप नंबर 2 में क्या दिया हुआ है बेटे? सर ये जो -20 -150 मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई किया. इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि इस एलिमेंट के नीचे मैंने इस एलिमेंट को 0 करना है, 20 को. 20 उस वक्त 0 होगा जब इसके साथ -20 में मल्टीप्लाई कर दूंगा. -20 इंटू 1 इज -20. -20 प्लस 20 इज 0. अच्छा ठीक है सर. बिल्कुल इसी तरह मैंने इसके साथ -50 मल्टीप्लाई किया. -50 प्लस 50 150 इज 0. -1000 प्लस 1000 इज 0. तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और R4A में भी मेरे पास 0 आ जाएगा. आप लोग साथ साथ करते रहें प्लीज. सर ये सेक्शन ए की क्लास है कि बी की है? ये बी की है. आप आ गए हैं तो अब जौन सी क्लास है अब आप बैठे हैं पढ़ें. ओके सर. ओके, दिस इज नाउ -150 plus 100 is -50. 0 plus 60 is 60. ये क्या बनेगा? माइनस प्लस 150 divided by 2 is 75. 75 plus 70 is 145. And it is 0 plus 40,000 is 40,000. रो नंबर 4 पे आ जाएं. ये तो पहला 0 हो गया. So this is -1000 plus 300 is -700. 400. 1000 divided by 2 is 500. 500 plus 200 is 700. And ये 0 था तो इसकी वजह से as it is 150,000 रिटर्न हो जाएगा. जी बच्चों, मुझे ये बताएं स्टेप नंबर 2 आपको समझ में आ गया? ओके, स्टेप नंबर 2 यहाँ से. This is step number 2. अभी तक कोई एम्बिग्युइटी हो तो बताइए. क्लियर है? यस सर. शाबाश. स्टेप नंबर 3 आप मेरे लिए कीजिए. स्टेप नंबर 3 में करना क्या है? स्टेप नंबर 3 में मैंने इस 10 को 1 बनाना है. कैसे बनाएंगे 10 को 1? डिवाइडेड बाय 10. We divided by 10. So step number 3 is more simple.
Step 3, where we have R2B is equal to R2A 1/10. So it becomes 1, 1, 0, minus 1/2, 0, 0, 1, 0.8, 1.6, 6000, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, रेस्ट ये दोनों एज इट इज वापस आ गए, -50, -700, 60, 400, 145, 700, 40,000, 150,000. This is step number 3 that has been returned. देखिए आपके पास स्टेप नंबर 3 का यही आंसर आ रहा है, तो इसके आपने रोज को नंबर देने हैं, तो रोज को दे दें. दिस बिकम्स R1A, this is R2B now, this is R3A, this is R4A. ठीक हो गया जी? जी यहां तक पहुंचे हैं स्टेप नंबर 3 तक? यस सर. शाबाश. स्टेप नंबर 4 मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा. इनफैक्ट आगे अब आपने ही सॉल्व करना है, यहां तक मैंने पहुंचा दिया. स्टेप नंबर 4 इज R1B is equal to -1 into R2B plus R1A. Okay, R3B is equal to 50 into R2B plus R3A R4B is equal to 700 into R2B plus R4A. Please apply step number 4 ताकि आपके पास कोई मैट्रिक्स रिटर्न हो जाए. क्या वैल्यूज रिटर्न हुई हैं? मुझे कोई लिखवाएगा वैल्यूज? कौन कौन बैठे हैं मीटिंग में? मुझे कौन वॉलंटियर करेगा वैल्यूज लिखवाने के लिए स्टेप 4 के लिए? सर मैं कर रहा हूँ सर. एक सेकंड. अभी कर रहे हैं, चलें 2-3 मिनट और ले लें.
स्टेप 4 को ज़रा सॉल्व करें। स्टेप 4 लिखवा दें मुझे बच्चों। स्टेप 4 का आंसर क्या आया? हमाद अली हमारे साथ बैठे हैं। मोहम्मद हमाद अली। यस सर। हमाद मुझे स्टेप 4 का मैट्रिक्स लिखवा दो। सर मैं अभी खुद कर रहा हूँ। अभी कर रहे हो आप? यस सर, वो आपकी स्क्रीन हैंग होगी तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आई, तो वो लिस्ट में अभी कर रहा हूँ। मोहम्मद शहरियार आप बैठे हो? जी सर मैं बैठा हूँ, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ अभी। स्टेप 4 ही अभी कर रहे हो? जी सर स्टेप 4 पे। अच्छा। मोहम्मद अदनान इलियास। अदनान इलियास सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी। कर लिया सॉल्व स्टेप 4? सर कर लिखवा रहा दो। हूँ, कर रहा हूँ। कुछ तो किया होगा ना अदनान, मुझे जरा बताएं। यस सर, अभी कर रहा हूँ सर, अभी अभी भी आया हूँ मैं सर अभी, इसलिए। कर लिया होगा ना कुछ ना कुछ, ये तो नहीं हो सकता ना कि अभी कुछ भी ना किया हो। यस सर। मैं ये स्टेप नंबर 1 रेस कर रहा हूँ। आई एम यस सर। इरेजिंग स्टेप नंबर 1 to note down the solution of step number 4. जल्दी किया करें आप लोग, स्लो हैं। तो स्टेप नंबर 4 क्या बनेगा? स्टेप नंबर 3 से लीड ले लीजिए। रोड 2 मस्ट रिमेन द सेम, ऐसे ही है, एंड कॉलम 1 मस्ट रिमेन द सेम। दैट मीन्स इट इज 1, 0.8, 1.6 and 6000। स्ट्रेट लाइन, इसने तो 0 ही होना है, we know that. What about this one? 0.8 multiplied by -1 plus that is -0.8.
दैट इज सिंपल। अदनान, या -0.8 आया। अदनान, नबीहा हमारे साथ हैं? सर मैंने शुरू में अरेंज डिफरेंट तरीके से किया था, यानी मैंने रो 4 को, इक्वेशन 4 को डिफरेंट तरीके से अरेंज किया था, तो मेरा डिफरेंट ही चल रहा है बिल्कुल। अच्छा, आपने रीअरेंज नहीं किया हुआ? नहीं सर, मैंने रीअरेंज किया था, मगर जैसे आपने इक्वेशन 4 को रो 1 बना दिया ना, वैसे मैंने उसको रो 4 ही बनाए रखा है, और यानी उसको दूसरी साइड पे अरेंज किया कि मेरा -1 है और बाकी 2 है, तो वो मेरा सारा मिक्सअप हुआ। लेकिन स्टिल नबीहा, एंड ऑफ द डे हम दोनों का सोल्यूशन सिमिलर आना चाहिए। जी सर, सोल्यूशन तो सिमिलर ही आएगा। लेट्स सी। So this is -0.8. This is, ये कितना बनेगा? -1.6 प्लस 0.5, -1.1। किसी का आंसर -1.1 आया है यहाँ पे? सर मेरा -2.1 आ रहा है। जी, लेकिन -2.1 आप आ रहा है। -1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.6 से, तो इट इज जी, -1.6। यस सर। -1.6 में ऐड कर रहा हूँ मैं -1.2। हाँ, तो 1.6 is 0.5 is 2.1. यस सर। Okay, thank you. Now this 6,000 multiplied by -1 is -6,000, and plus that value is -6,000 here. ऐसे ही है। यस सर। Okay, coming to row number 3, 50 into row 2, 50 into 0.8 is कितना होता है? 40. 50 into यस 0.8 सर। is 40। 40. Okay. यस सर। 40 plus R3, that is 60. It becomes 100. यस सर। Okay. So 50 into 1.6 कितना होता है? सर 80। 80. यस सर। Okay. 80 plus 145. सर 225। 80 plus 145 is 225. Okay. Now 50 into 6,000, ये कितना होता है? सर 300,000। 300,000. यस सर। Okay. 300,000 plus 40,000 is 340,000. यस सर। So this is 340,000. मुझे बताते रहें कि मैंने कोई सिफर आगे पीछे ना मिस कर दिया हो। What about row 4 now? वैल्यूज बहुत बड़ी हो गई हैं। रो 4 नाउ, रो 4 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है रो 2 के लिए। तो 700 इंटू 0.8 इज, कैलकुलेटर्स आपके पास हैं? 700 into 560। 0.8 is 560। 560. यस सर। 560 plus 400, 960. यस सर। 960. Again, 700 into 1.6, सर 1120। plus 700, उसमें प्लस 700 कर दो। सर 1820। जी, 1820। देखिए यही बन रहा है। यस सर। ओके,
Now 700 into 6,000. 700 into 6,000 is 4,200,000. Yes, sir. 4,200,000 is, ऐड कर दें 4,200,000 को 150,000 में, क्या बनेगा? So 4350. It is 4350,000. ऐसे ही बन रहा है? Yes, sir. This is the solution for step number 4. This is the solution for step number 4. अच्छा, अब स्टेप नंबर 4 के बाद जब आपने ये 0 बना लिए हैं तो मुझे चाहिए इस 100 की जगह आइडेंटिटी विच इज़ 1. So that means step number 5 is simply, कहाँ लिखूं, कहाँ पढ़ा जाएगा आपसे? Step 5 is R3B is equal to R3, 3B बन गई है, 3B, so this is 3C now. R3C is equal to R3B multiplied by 1 by 100. When you do that, तो ये ख़त्म हो जाएगा. I hope आप सारे नोट कर चुके हैं. So this becomes by 100, by 100 and by 100. This is the solution for step number 5. सारे मेरे साथ हैं यहाँ तक? बच्चों, Yes, sir. ये डिवीजन बाय 100 समझ आ गया आपको? Yes, sir. शाबाश. So that means it is 1. That means it is 2.25, and that means it is short of 2 zeros. This is the solution for step number 5. What about step number 6? What about step number 6? I am raising this now. Step number 6, this is one C, 2C and 4C. 1C कैसे क्रिएट करेंगे? मुझे लग रहा है कि आप सिंपली 0.8 इंटू R3C कर दें, R3C प्लस R1B. 2C कैसे क्रिएट करेंगे? माइनस 0.8 R3C plus R2B. This is 2. Last, minus 960 R3C plus R4C. This might be our last step.
इसके बाद मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, लास्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। So this shall return 1 0 0 0 0 1 0 0। ये अपनी जगह पे मौजूद है। 1 2.25 400 जी, ये सारे ज़ीरो हो जाते हैं। 0 0 0 हो रहे हैं ज़ीरो। 0.8 माइनस 0.880 माइनस 0.8 प्लस 0.880 एंड माइनस 960 प्लस 960 इज 0। ठीक है, इधर आ जाएं। अभी जो मेरे से इंटरेक्ट कर रहा था लड़का, उसका क्या नाम है? कौन मेरे से इंटरेक्ट कर रहा था स्टूडेंट? सर हमाद क्या नाम है? सॉरी, हमाद अली। फहद। हमाद सर, हमाद अली। ये बताइए मुझे 0.8 इंटू 2.25 सर 1.8। आपका जो माइक है वो बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, थोड़ा सा उसे ठीक करें, आवाज़ क्लियर आए आपकी। सर अब आ रही है? वैसे ही है। सर फिर हैंड फ्री समझे सारे होगी, नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा, 2.25 इंटू 0.8 कितना होता है जी? सर 1.8। और उसमें से आप माइनस कर दीजिए 2.1 को। जीरो माइनस 0.3। वी हैव माइनस 0.3। अच्छा, अब आप कीजिए 2.25 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.8 सर माइनस 1.8 प्लस 1.6 माइनस 0.2। माइनस 0.2। यस सर। अच्छा, अब आप कीजिए 2.25 मल्टीप्लाई बाय माइनस 960 सर माइनस 2160। माइनस 2160। इसमें ऐड कर दें 1820 सर माइनस 340। माइनस 340। ठीक है, अब आप नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाएं। अब आप करें जी 3400 मल्टीप्लाई बाय 0.8 सर 2720। कितने? 2720। 37 सर 27। 27। यस अच्छा, सर 2720। इसमें आप माइनस कर दीजिए 6000। सर माइनस 3280। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। माइनस सर माइनस 3280। माइनस 4280। सर 32। यही बता रहे हो? सर 32। 32। 32 यस। आप अपना माइक चेंज करो बेटे, आपका माइक बहुत खराब है। सर नया लगवाता हूँ। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, समझ नहीं आती। ओके, 3400 आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 34 को मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 0.8 से। कर रहे हो?
3400 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -0.8 से। किधर गए हो? सर -2720 2720 इसमें प्लस कर दो 6000। सर 3280 ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू 3400 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -960 से। सर जी इतना बहुत है। जी 3400 मल्टीप्लाई बाय 960। सर 32,64,000। आपकी ये आवाज तो कतई नहीं समझ नहीं आई मुझे। तो इसका आंसर कहीं बनता है जाके 1086,000। कहीं पे ना आप लोगों ने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कराई है मुझे, मल्टीप्लाई डिवाइड में। ये वैल्यू बनती नहीं है इसकी। नबीहा हमारे साथ हैं क्या? नबीला क्या नाम है? नबीहा? जी सर, मैं कर तो रही हूँ, मगर वो जो आपको मैंने बताया था कि मेरा बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है, तो इसलिए मैं अच्छा, आपको नहीं करा सकती चेक। X4 की तरफ पहुंची हैं आप कुछ? नहीं सर, अभी नहीं। अभी X4 पे नहीं पहुंची हैं आप। क्योंकि यहाँ कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है और X4 ख़राब हो गया। X4 इज़ नॉट द राइट वैल्यू। यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ है ना स्टूडेंट्स, वो इस वैल्यू में है। दिस इज़ द रॉन्ग वैल्यू हेयर। उसका जो प्रॉब्लम है वो इन इक्वेशन से नहीं आ रहा है, उसका जो प्रॉब्लम है वो हमारी कैलकुलेशन से आ रहा है। नेवरदलेस आप लोग ऐसे कीजिए, इस क्वेश्चन को एज एन असाइनमेंट कंसिडर कर लें और मैं इसका आंसर आपको लिख के देता हूँ। नोट डाउन द आंसर प्लीज। मेरे पास इसका आंसर भी है। The answer to this question is x1, x2, x3, x4, 50, 100, 25 and 300. This is the solution to this question. लास्ट सर में कहीं आखिरी स्टेप कैसे होगा? आखिरी क्या? ये आप
ये जैसे अगर हमने स्टेप 6 किया है ना, तो उसमें x4 वाली जगह अभी भी -340 है ना, उसे 1 होना चाहिए था ना। हाँ, वो उसे 1 करने की जरूरत नहीं है ना। ये देखें, अगर ये तो नंबर्स थोड़े से आगे पीछे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास लास्ट इक्वेशन में ये आ गया है -340 x4 इज इक्वल टू दैट वैल्यू 1086,000, तो मैं x4 को वैसे ही सिंपली सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जी डिवाइडेड बाय 340 करूंगा तो मेरे पास सही x4 है, सही है, सही है, ठीक है सर। उसे लाजमी नहीं है कि मैं, ये वही बात है कि मैं उसे डिवाइड बाय 340 कर रहा हूँ दोनों साइड्स पे। जी सर, सही सही। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये चीज़ ज़रा गौर करें, प्लीज़ एवरीवन। वंस वी हैव द सॉल्यूशन फ्रॉम दिस वैल्यू, ये x4 है मेरे पास, तो मैं x4 निकाल सकता हूँ -340 x4 इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू 1086,000, तो x4 इज इक्वल टू 1086,000 डिवाइडेड बाय 340, वट एवर द आंसर इज। तो यहाँ से मुझे x4 मिल जाएगा। अच्छा, easy way out is to substitute the value of x4 into these three equations. पहली इक्वेशन क्या बनी हुई है? फर्स्ट इक्वेशन इज x1 प्लस या माइनस, मुझे नजर आ रहा है क्योंकि ये दोनों तो x2 और x3 जीरो हैं, तो मेरे पास है -0.3 x4 इज इक्वल टू -3280। x4 की जो वैल्यू निकली है मैं यहाँ प्लग इन कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू -3280 प्लस 0.3, x4 की जो वैल्यू यहाँ से बनी, तो दिस इज x1। सिमिलरली यहाँ से x2 मैं निकाल सकता हूँ, x2 इज -0.2, x4 इज इक्वल टू 3280, x2 निकल आएगा। और सिमिलरली मैं x3 निकाल सकता हूँ, विच इज x3 प्लस 2.25, x4 इज इक्वल टू 3400। जैसे ही कोई एक वैल्यू निकलती है, चाहे लास्ट स्टेप में आप रो ऑपरेशंस कर भी लें, तो वो भी फिर यही वैल्यूज रिटर्न करेंगे। तो यू कैन इजीली, थोड़ा सा ये नंबर्स आगे पीछे हुए हैं वो आप असाइनमेंट में अपने देख लीजिएगा। अगर कहेंगे तो मैं आज रात या कल किसी वक्त घर से रिकॉर्डिंग करके इस पूरे के पूरे क्वेश्चन की वो अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज दिस इज द वे हाउ थिंग्स गेट सॉल्व्ड। आइडिया समझ आ गया? बेसिक आइडिया आप लोगों को? जी जी, चल। इसका तो नहीं दिया। नेटवर्क बंद ना हो जाए।
आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस जी सर। सर। ठीक है। Yes, sir. Okay, so this is how you solve a greater n by n system, which is 4 by 4 और 5 by 5. तो आपको आइडिया हो गया कि ये सिस्टम सॉल्व कैसे करना। स्टार्ट हमने किया था इसे 2 by 2 से और इवेंचुअली वी लैंडेड एट n by n सिस्टम। तो हमें पता है कि जितना बड़ा ये सिस्टम हो जाए, जितनी इक्वेशंस हो जाएं, हमने उसे सॉल्व कर लेना। लेकिन ये जो सोल्यूशन है आइडेंटिटी की तरफ जाने वाला, ये सोल्यूशन हमें बताता है कि हमारे पास सिमेट्रिकल मैट्रिसेस होनी चाहिए जिसमें आइडेंटिटी मैं इजीली क्रिएट कर सकता। वो सिमेट्री उन सिस्टम्स में नहीं है जहाँ पे इक्वेशंस और वेरिएबल्स बराबर हैं। अभी तक तो हम सॉल्व कर रहे थे 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, लेकिन जहाँ पे सिमेट्री नहीं है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई हैव अ 4 by 2 सिस्टम। ये मैंने खैर क्लास में भी सॉल्व कराया था। आई हैव अ 4 by 2 सिस्टम। तो मेरे पास 4 इक्वेशंस आती हैं। वो भी मैं वो मैं कराऊंगा नहीं, वो आप लोग खुद जो है उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने उसे क्लास में एक दफ़ा सॉल्व करा दिया है। मोस्टली स्टूडेंट्स उसमें एब्सेंट थे। दिस वाज द लास्ट ऑन कैंपस क्लास। अगर मैं वो ढूंढ लेता हूँ जी, दैट इज 4 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स। देख रहे हैं सिमेट्री नहीं है इसमें। सो दिस इज x plus 2y is equal to 8, 2x plus minus 3y is equal to minus 5, minus 5x plus 6y is equal to 8, and x plus y is equal to 7. Now you have 4 equations, 1, 2, 3 and 4. जहाँ तक हम इजीली आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे हमें आइडेंटिटी क्रिएट कर लेनी होती है, जो कि यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता हूँ, विच इज़ 1 0 0 1। यहाँ पे ये क्रिएट हो सकती है, लेकिन इस तरफ वो आगे मूव नहीं करेगी। सिमेट्री यहाँ आगे नहीं जाएगी, आइडेंटिटी आगे मूव नहीं करेगी। दैट मीन्स जहाँ तक आइडेंटिटी क्रिएट होती है वहाँ तक तो मैं कोई भी मेथड एलिमिनेशन या गॉस एलिमिनेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो आप अप्लाई कर दें, वो चाहे 3 by 3 सिस्टम हो, आप जहाँ तक इजीली आइडेंटिटी अप्लाई करना चाहते हैं आप कर दीजिए। जब आपने एलिमिनेशन गॉस एलिमिनेशन अप्लाई कर दिया तो आपके पास कोई भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी, फॉर एग्जांपल x2 एंड y3। इन्हीं 2 वैल्यूज को वापस इस सिस्टम में इनपुट कर दीजिए। x की वैल्यू x में डालिए, y की वैल्यू y में डालिए। x x में जाएगा, y y में जाएगा, एंड यू नीड टू प्रूव दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तब आपको पता लगेगा कि हाँ, हमारा जो सोल्यूशन हमने निकाला है वो करेक्ट है। जब आपको पता लग जाए कि दिस इज द वेरीफाइड solution now, verified unique solution, then you need to apply the same solution to equation number 3. उसके साथ आपने एलिमिनेशन गॉस एलिमिनेशन वाली गेम नहीं करनी। यहाँ पे आपने उसे वेरीफाई कर लिया सोल्यूशन को, अब इक्वेशन 3 को वेरीफाई कीजिए। जब आपने इस 2 इक्वेशंस को वेरीफाई किया है तो ग्राफ पे आपको मालूम है कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर गई हैं और ये x और y का सोल्यूशन निकल आया है, इसीलिए तो ये यूनिक सोल्यूशन है। अगर इक्वेशन 3 भी उसके ऊपर वेरीफाई कर जाती है, इट इज अगेन वेरीफाइड इक्वेशन 3, दैट मीन्स द थर्ड इक्वेशन, द थर्ड लाइन इज अगेन पासिंग थ्रू द सेम यूनिक सोल्यूशन। तो 3 आपके पास वेरीफाई हो जाती है। फोर्थ वेरीफाई होगी तो फोर्थ भी इसमें से गुजर जाएगी, सेम पॉइंट। लेकिन अगर फोर्थ
वहाँ पे नहीं वेरीफाई होती। फॉर एग्जाम्पल 4th हैज नो सोल्यूशन, इसके ऊपर पूरा नहीं उतरता ना 2 + 3 = 7, नहीं 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 7। दैट मीन्स कि जो इक्वेशन नंबर 4 है वो कहीं इधर से गुजर रही है। इस पर्टिकुलर केस में आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 1, 2 और 3 इक्वेशंस थी, ये 4 इक्वेशन को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपको पता लग गया था। नाउ वी हैव फर्दर इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इन तमाम लाइंस को ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट स्टेप इज कि सबसे पहले तो आप ये करें कि आप चारों इक्वेशंस के लिए स्लोप फाइंड आउट कर लें। तमाम इक्वेशंस के लिए आप y इंटरसेप्ट निकाल लीजिए और तमाम इक्वेशंस के लिए आप x इंटरसेप्ट निकाल लीजिए, ताकि वो ग्राफ पे ड्रॉ तो हों। जब वो ग्राफ पे ड्रॉ हो जाएंगी, स्टूडेंट्स आपको मेरी बात में, मेरे लिखने में कोई लैग अभी आ रहा है? नहीं सर। कितनी देर से लैग नहीं आया? बोलो। तो कुछ देर से 5-10 मिनट से लैग ठीक हो गया। लैग ठीक हो गया 5-10 मिनट। चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि हमने इन चारों इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ भी तो करना है। जब हमने ड्रॉ करना है तो मुझे इसका स्लोप पता हो, y इंटरसेप्ट पता हो, x इंटरसेप्ट पता हो, तभी मैं इसे ग्राफ पे ड्रॉ कर सकता हूँ ग्राफ पेपर पे। जब ग्राफ पेपर पे मैंने ड्रॉ कर लिया है और मुझे ये भी पता है कि पहली 2 या 3 इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, तो मैं बड़े प्यारे तरीके से पहली 3 इक्वेशंस को, पहली 3 लाइंस को, लीनियर लाइंस को इस पे ड्रॉ कर सकता हूँ वंस आई हैव द ग्राफ पेपर। 4th लाइन को भी मैंने ड्रॉ कर लिया, तो 4th लाइन ग्राफिकली मुझे ये बता देगी कि उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या हैं, पर वो ग्राफिकली होगा। उसका डबल चेक ये है कि ग्राफिकली तो मुझे जो पॉइंट्स मिल गए, लेकिन साथ मुझे ये पता लग गया कि 4 जो है वो 1 को इंटरसेक्ट कर रही है, और मुझे पता लग गया 4 जो है वो 3 को भी इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स कि मैं सेकंड आइटरेशन जो करूँगा, ये तो मेरी फर्स्ट आइटरेशन है, तो जो मेरी सेकंड आइटरेशन होगी उसमें मैं एलिमिनेशन या गॉस एलिमिनेशन से इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 को सॉल्व करूंगा, ताकि मुझे 4 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। इस इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहा हूँ। और फिर मैं थर्ड आइटरेशन करूंगा जिसमें मैं इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1, क्योंकि ये 1 आ रही है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। इक्वेशन 1 को मैं एलिमिनेशन या गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा ताकि मेरे पास ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए। सो द कंप्लीट क्वेश्चन इज कि मुझे ग्राफ पे ये सारे के सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स, द x intercepts, the y intercepts and all the 4 lines representing the 4 equations are required on the graph paper. This is the complete question. इसकी जितनी आइट्रेशंस हो वो पेपर में आपको उतनी आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी। इसलिए अब आप ऐसे कीजिए, लेट इट बी दी असाइनमेंट। आज हमने 2 सवाल किए, ये दोनों सवाल जो हैं आपकी असाइनमेंट कर लीजिए, और मुझे आपने ये असाइनमेंट जो है हैंड रिटन और फिर उसका आप पिक्चर लेके मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज दें, या मुझे आप इस टीम्स के ऊपर अपलोड कर दें। और इसकी जो डेडलाइन है वो क्या रख दें, टुडे इज फ्राइडे, लेट इट बी संडे 12 नून, दोपहर 12 बजे तक इसकी मुझे आप भेज दें कॉपीज। तो असाइनमेंट भेज दें। तो ये 2 क्वेश्चन हैं और इन दोनों क्वेश्चंस को आप मुझे असाइनमेंट, अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अभी पूछ लीजिए कि क्या क्या आपने ड्रॉ करना है। मुझे इसके लिए पूरा एक ग्राफ चाहिए। कल संडे या मंडे? जी,
तुम आपको भेजनी है क्या कह रहे हो? यार लास्ट डेट का भी असाइनमेंट थी। आपकी आवाज मुझे फ्रैंकली नहीं आ रही, बहुत दबी हुई आवाज है आपकी। थोड़ा थोड़ा लाउड बोलें, शायद मैं समझ जाऊं। सर असाइनमेंट कब जमा करानी है? असाइनमेंट मैंने बता दिया, डेडलाइन संडे को है 12 बजे। संडे? ठीक। और उसमें 2 क्वेश्चन, जो दोनों क्वेश्चन आज हमने किए हैं। एक क्वेश्चन हमने इससे पहले वाला तकरीबन हमने कर लिया था, उसमें थोड़े से कोई कैलकुलेशंस की ऊपर नीचे मिस्टेक हो गई, वो पूरा कर लीजिए क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो आपको क्लास में मैं करा भी चुका हूँ। इसमें आपने फर्दर जो है आइट्रेशंस करके ग्राफ के ऊपर तमाम इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल के फिर आपने वो मुझे सबमिट कराना है। उसी के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ। क्लियर? यस सर, यस सर। ओके। ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको शाम तक या कल तक मिल जाएगा, तो बाकी स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि असाइनमेंट आ गई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।